So let us do section C. Question number 32. Study the following diagram carefully and calculate tension in the string. We have to calculate tension in the string. A pulley is given and two masses are attached. They are passing over the pulley M1 and M2. Observe the diagram carefully. This is the question. And calculate tension in the string. We are to find tension in the string. And see the direction of arrows they have given is A this side and A this side. That means M1 mass is heavier than M2. M1 is heavier than M2. This is the direction that they have given. Now let us draw their free body diagram. ठीक है? Let us mark the forces. अब ये जो वेट है ये एक्ट कर रहा है M2G in the downward direction. In turn, tension is acting in the opposite direction. Weight M1G is acting in the downward direction and tension is acting in the opposite direction. So let us write the equation of motion for M2 mass first. कौन बताएगा मुझे? Raise hands. M2 mass के लिए equation क्या बनेगी? Who will tell me? Yes, raise hand if you know the equation. Very simple. Who will tell me? बताइए बच्चे. कौन बता सकता है? हाँ गितेश. A is equal to MA is equal to T minus M2G. हाँ, M2A is equal to T minus M2G. पहले हम we will write the difference between the forces in the direction of acceleration. So T minus M2G is equal to M2A. Yes, this is the equation of motion for M2 mass. Now, how will you write for M1 mass? Who will tell me? Saksham, आप बताओ. How will you write the equation for M1 mass? Ma'am, M1G minus T is equal to M1A. M1 G minus T is equal to M1A. Yes, very good. So that is M1G minus T is equal to M1A. So these two equations are there. We are to find tension. ठीक है? तो कैसे निकालेंगे हम टेंशन? पहले जब आप ऐड करते हो तो ये टेंशन कैंसिल हो जाती है, बट हमें तो टेंशन ही निकालनी है. चलो ऐसे कर लेते हैं. So when we add these two equations, tension gets cancelled and we find the acceleration. So we get M1 minus M2G is equal to M1 plus M2A. हमने सिंपली ऐड किया है. M1G पॉजिटिव है, M2G नेगेटिव है, तो M1 minus M2G हो गया और इधर इन दोनों को ऐड कर दिया. So acceleration is coming out to be M1 minus M2 over M1 plus M2 into G. So first of all, we have found acceleration of the system. Acceleration of the system we have calculated. Now put this A in any one of the equations. You will get the formula for this tension in the string. 2M1 M2 over M1 plus M2. So put this value of A in any one of these two equations and you will find the formula for tension. 33rd question is, what do you mean by impulse? Give its units. How can you show that impulse is equal to change in momentum? You know, this is impulse momentum theorem. They are asking impulse momentum theorem. Okay, Abhay Sharma, will you tell me what is impulse and what is its unit? Abhay Sharma, unmute yourself. बताइए. Yes, ma'am. हाँ जी बताइए क्या होती है इम्पल्स और इसका फॉर्मूला और यूनिट. यस बताओ. इम्पल्स का फॉर्मूला और यूनिट बताइए. होती क्या है इम्पल्स? क्या होती? यस एनीवन? मानविया, you tell. Force into time. Yes, impulse is force into time. It is the product of impulsive force and time of impact. Impulsive force is the force that is acting for a short moment of time, but its impact is very large. And the time of impact is the time for which the force acts on the body.
So product of force and time, that is called impulse, and so that's why its unit is Newton second. Okay, impulse is force into time. So force का unit है Newton, time का unit है second. Newton second is the unit of impulse, और it is also equal to kg meter per second. वो कैसे लिखोगे अगर आप न्यूटन को पुट करते हो? kg meter per second square. You know, 1 Newton is kg meter per second square. So 1 second gets cancelled, and you can also write kg meter per second, which is the unit of momentum. kg meter per second momentum का unit है, तो वो that is equivalent to Newton second. So that's why we say that impulse and momentum, they have same units, they have same dimensions also. ठीक है? अब impulse momentum theorem उस दिन मैंने आपको करवाई थी, चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार. What is impulse momentum theorem? From Newton's second law, force is rate of change of momentum, cross multiplied, dp is equal to f dt. Integrate both sides. Momentum varies from initial to final, and time varies from 0 to t. Now integral dp is t within the limits p1 to p2, and integral dt is t within the limit 0 to t. Upper limit minus lower limit. Upper limit minus lower limit. Now what is this P2 minus P1? This is change in momentum, and on the right hand side we are getting force into time, which is impulse. So impulse is equal to change in momentum. This is called impulse momentum theorem. So that was the third part of this question. मैम Yes. मैम हम इसमें सीधा f इंटू टी लिखेंगे, f एवरेज इंटू डेल्टा टी लिखें इम्पल्स को. F को क्या लिखेंगे? f एवरेज लिखेंगे, सिर्फ f ही लिख दें. F लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो अंडरस्टूड है कि एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. 34th question is, how can you use Copernicus method for determination of distances of inferior planets? Copernicus method. ठीक है. आपको पता है इसमें मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन लेते हैं हम, फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ हम निकालते हैं कॉपरनिकस मेथड से. एंड व्हाट आर इंफीरियर प्लैनेट्स? मर्करी एंड वीनस, दे आर inferior planets that are having orbits smaller than that of Earth, that are closer to the sun than Earth. They are called inferior planets. Other planets that are farther than Earth from the sun, they are called superior planets. उनके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? केपलर्स मेथड, केपलर्स थर्ड लॉ यूज करते हैं. बट फॉर inferior planets का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए we always use Copernicus method. ठीक है. तो Copernicus method याद है कि I need to remind you? बताइए, रिवाइज करवा दूं कि आता है आपको? बोलो बच्चे, आता है? साइन और कॉज ही लगाना है बस आपने. साइन ऑफ एप्सिलॉन और कॉज ऑफ एप्सिलॉन ही यूज करना है. मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ. ठीक है. तो अब ये इस तरह से हम लेते हैं. दिस इज मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन. ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है. ये है सन, दिस इज अर्थ, एंड दिस इज दैट इंफीरियर प्लैनेट, एंड दिस इज अर्थ. इंफीरियर प्लैनेट का ऑर्बिट सन और अर्थ के बीच में होगा. ठीक है. तो ये अर्थ उसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और बीच में इंफीरियर प्लैनेट है. ये मरकरी भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है. तो बस यहां से आपने RSE, ये डिस्टेंस RSE है, दिस डिस्टेंस इज RPS, दिस डिस्टेंस इज RPE. तो आपने बस एक बार साइन लगाना, एक बार कॉज लगाना, आपका मेथड आ जाएगा. ठीक है. तो व्हाट इज साइन ऑफ एप्सिलॉन? मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. So distance between planet and sun will be RSE times sine of epsilon. And what do we call the distance between sun and earth? That is called 1 AU, 1 astronomical unit. So we get RPS, distance between planet and sun. ठीक है. तो इसी तरह से आप cos भी लगा सकते हो. That will give you distance between planet and earth. वो भी आ जाएगा. सेक्शन D था. देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से हैं.
35th है, what do you mean by beats? How are the beats formed? Discuss the phenomenon of beat formation analytically. How is this concept helpful in determination of purity of mine air? अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट करवाई है, चलो एक बार डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ. What do you mean by beats? Beats are rise and fall in intensity of sound. How are the beats formed? They are formed when two traveling waves having slightly different frequencies traveling in the same direction superimpose. ठीक है, तो उनकी सुपरपोजिशन से बीट्स बनती हैं एंड दे आर नॉट आइडेंटिकल वेव्स क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 10 हर्ट्ज, स्लाइटली डिफरेंट, इसीलिए हम कह रहे हैं. डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. आपने बीट फ्रीक्वेंसी तक कैलकुलेट करना है, ν1 माइनस ν2 आ जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी. और दिस इज वन एप्लीकेशन दे आर आस्किंग फॉर कि हाउ डू वी चेक द प्योरिटी ऑफ माइन एयर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बीट्स. तो याद है आपको कैसे निकाला था हमने? Two samples of air will be blown. One sample is taken from the mines and one sample will be of pure air. They are blown simultaneously and they are allowed to form beats. If no beats are formed, that means वो जो दोनों sample थे वो same हैं. That means mine air is same as pure air. Mine air is pure. It is not contaminated, right? But if the beats are formed, उसका मतलब उन दोनों की frequencies different है, वो दोनों sample different है. Mine air और pure air different है, mine air pure नहीं है, that means mine air is contaminated. ठीक है, तो यहाँ से हम check कर सकते हैं. 36th question is what is an adiabatic process? Who will tell me what is an adiabatic process? तुषार अरोड़ा, will you tell? तुषार बच्चे बताइए. In which heat transfer is zero. Yes, and what else? System should System should be isolated. Insulated. System insulated होना चाहिए from all the sides so that when we compress the system with the help of piston pushing downward, then the gas will get compressed and temperature of the gas will rise permanently. It will not be compensated with the surroundings. Okay, so there will be change in temperature, but heat exchange won't be allowed because the system will be insulated from all the sides. Okay, so an adiabatic process is a thermodynamic process in which there is no heat transfer allowed. And conditions, this processes should also be carried out very fast so that there is no time for heat exchange, because we don't want the temperature to get compensated here and to become constant, because this is an adiabatic process. Any example of adiabatic process आप दे सकते हो? Propagation of sound through the air. इसको हमने न्यूटन्स फॉर्मूला, लैपलेस करेक्शन में अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि propagation of sound through air is not an isothermal process, it's an adiabatic process. तो वो एग्जांपल आप दे सकते हो. Propagation of sound through the air is an adiabatic process. Calculate the work done during an adiabatic process and draw this process on an indicator diagram. Indicator diagram क्या होता है? PV diagram. तो उसके ऊपर हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? कल परसों अभी हम कर रहे थे कि आइसोथर्मल कर्व कौन सी है और एडियाबैटिक कर्व कौन सी है. ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसकी इक्वेशन है आपकी PV रेज्ड पावर गामा इज अ कांस्टेंट, और फिर वर्क डन इज इंटीग्रल PdV से आप इसका वर्क डन जब निकालते हो तो वो आ जाता है R T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1. ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस पे एडियाबैटिक कर्व इंडिकेटर डायग्राम पे ऐसे आप शो कर सकते हो. अगर एरो इस साइड पे है तो इट इज शोइंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अगर एरो उस साइड पे है तो इट विल बी शोइंग एडियाबैटिक कंप्रेशन. सो दिस विल बी द शेप ऑफ एडियाबैटिक कर्व. अब आप बताइए कि ये वर्क डन आपको आता है? थोड़े दिन पहले मैंने रिवाइज किया था कि भूल गया है. अगर रिवाइज करना है तो मुझे बता दो, मैं अभी कर देती हूँ डेरिवेशन, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यस, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन दिस डेरिवेशन तो रेज हैंड. किसको डाउट है ये बता दीजिए. यस यस बच्चे, है डाउट किसी को? हम कर लेंगे, खुद कर लेंगे. कर लेंगे, चलो ठीक है.
किसी और को डाउट तो नहीं है बच्चे? ओके। 37th क्वेश्चन है ए पार्ट, स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, हाउ कैन यू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यूजिंग दिस लॉ, शो दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की, इफ टू गिवन वेक्टर्स can be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram starting from a point, then the diagonal of the parallelogram starting from the same point will represent their resultant in magnitude and direction both. ये तो होगी स्टेटमेंट। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है एक तो इसका मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन निकालनी है tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। ठीक है, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट आई कैन सॉल्व इट हियर। यस एनीबडी? इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको थीटा और बीटा ये दोनों डायग्राम में मार्क करने होते हैं। Sometimes you don't mention the angles, but the meanings are entirely different. Theta is the angle between vectors a and b, and beta is the angle that the resultant of a and b makes with first vector. ठीक है, जो a वेक्टर के साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है उसको हम बीटा लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल्स आपने डायग्राम में जरूर मार्क करने होते हैं, क्योंकि हम कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं tan theta is equal to b sin theta, तो वो यहाँ पे भी थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे भी थीटा लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। एंगल का मतलब यही नहीं होता, वो tan बीटा है। और देखो कैसे आपने डायग्राम में मार्क करना है। दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है, टू वेक्टर्स a and b, theta is the angle between two vectors and this is beta that the resultant is making with first vector, so always remember this। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ये वाली साइड आ जाती है b cos थीटा, क्योंकि अगर ये b है तो ये भी b है, और यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, ये भी थीटा है क्योंकि ये थीटा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया, तो ये साइड आ जाती है आपकी b sin थीटा। आफ्टर दैट यू जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हो तो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इस पूरे ट्राइंगल में tan बीटा का फॉर्मूला लगाते हो तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाता है b sin थीटा ओवर a प्लस b cos। ठीक है, तो इस तरह से आपकी डेरिवेशन होती है। बट स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी, तो मैं डिटेल में करवा सकती हूँ। हाँ जी बोलो बच्चे, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, एनी अदर? ऑलराइट, तो सेकंड पार्ट था शो दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस a, तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ही करेंगे। दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, a प्लस बी वेक्टर इज b प्लस a वेक्टर। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे? वेरी सिंपल, ये आपने दो वेक्टर ले लिए a और b, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लिया, तो अगर ये b है तो ये भी b है, ये a है तो ये भी a है, ठीक है, तो जॉइन दिस एंड दिस, राइट। तो अब पहले हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को इस डायगोनल से दो पार्ट्स में, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, लेट्स अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स टू दिस पार्ट, टू दिस ट्राइंगल। तो क्या आएगा, वेक्टर r इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b, देन वी अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स टू दिस ट्राइंगल, वेक्टर r इज वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो क्योंकि वेक्टर r दोनों के इक्वल है, आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हो, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर आ जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी डिवाइड करते हो वो आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए चाहिए होगा। तो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कॉम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब है a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a,
A क्रॉस B इज माइनस B क्रॉस A। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन, ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, आपको मैं वेक्टर्स के करवाना चाहती हूँ। वेक्टर्स की ये काफी देर हो गई है। इसमें मैम हाँ जी बोलो। मैम हमारे को कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तो नहीं आना? वो नहीं करवाया, वो डिलीट हो गए टॉपिक्स। ठीक है। चलो वेक्टर्स के क्वेश्चन करते हैं, अपनी कॉपी पे करिए साथ साथ। आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वो लॉज हैं, ठीक है। आपका हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर भी डिलीट हो चुका है। आपके जो लॉज हैं वो सारे करने हैं आपने। स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो सारे करने हैं, ठीक है। चलिए बताइए, व्हाट इज आई क्रॉस जे? आई क्रॉस जे क्या है? आई क्रॉस आई क्या है? गुंजोत विल टेल मी। गुंजोत आप बताओ, व्हाट इज आई क्रॉस जे? गुंजोत अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी आई क्रॉस जे क्या होता है? गुंजोत भाटिया, ओके। चरणजोत आप बताइए। चरणजोत पता है आपको इसका आंसर? हाँ जी बच्चे बताइए, आई क्रॉस जे क्या होता है? हाँ चलो, आई ठीक है। क्रॉस, हाँ के कैप होता है। आई क्रॉस जे होता है के कैप, जे क्रॉस के होता है आई कैप, और के क्रॉस आई होता है जे कैप। मतलब जब हम ऑर्डर में चलते हैं, आई जे, जे के आई, वो उनके आंसर पॉजिटिव है। पर जब हम इनका रिवर्स कर देंगे, जे क्रॉस आई वो हो जाएगा माइनस के क्रॉस जे वो हो जाएगा माइनस आई क्रॉस के वो हो जाएगा माइनस जे। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। और सेम टाइप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वो जीरो होता है। आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो, के क्रॉस के इज जीरो। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। आई डॉट आई क्या होता है? 1। 1। आप इसको आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। नाउ व्हाट इज आई डॉट जे? 0। 0, क्योंकि आपको पता है कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, एंड सिंस आई एंड जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so angle between ij jk ki that is 90 degree and cos 90 is always 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। ये एक तो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट राइट डाउन अ क्वेश्चन। राइट डाउन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a and b is 60 degree। hurry up, write down the angle between vectors a and b is 60 degree। find the ratio of a dot b and a cross b। this is the question, angle between two vectors is 60 degree, find the ratio of a dot b and a cross b magnitude। चलिए सॉल्व करिए इसको, मैं भी कर रही हूं यहाँ पे। इनकी रेशो निकालनी है हमें। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर हम नहीं लिखेंगे साथ में, तो ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। अब थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो कॉट 60 इज 1/√3, दैट इज द आंसर। ठीक है, ओके फाइन। चलिए एक लिखिए क्वेश्चन और। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by vectors a and b। whose adjacent sides are given by vectors a and b।
ये एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। तो जब साइड्स दी होती हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट विल बी ए क्रॉस बी। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी, तो ये होगा आपका। अब कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट मेथड से, बाद में हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सो टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट वी ऑलवेज सॉल्व द डिटर्मिनेंट 1 2 3 2 -3 1। चलो एक्सपैंड करो इसको, बताइए क्या आंसर आएगा। पहले वेक्टर ए क्रॉस बी क्या आएगा वो बताओ, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। यस हरी अप, ओपन करना आता है ना इसको। फर्स्ट वेक्टर पहले ये ड्रॉ करेंगे हम, इसको हाइड कर लेंगे, ये रह गया आपके पास दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस माइनस 9, फिर माइनस जे कैप, नेक्स्ट के आगे माइनस साइन लगाते हैं, दिस इनटू दिस इन माइनस दिस इनटू दिस, 3 into 6 प्लस के कैप। अब ये के कैप है, ठीक है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, -3 -2 into 2, so this becomes 2 plus 9 11 I cap minus 1 minus 6 minus 5, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया -7। so this is your A cross B, 11 I cap plus 5 J cap minus 7 K cap। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ठीक है, ये तो आपका एक वेक्टर आ गया, एरिया वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, ऐसे आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। इतने स्क्वायर यूनिट्स वो एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। सो दिस वे यू कैन डू योर वेक्टर्स आल्सो, फाइन। मैम इस चैप्टर से कितने नंबर का आना? एज सच ऐसे फिक्स नहीं है, आपका 7 के नंबर्स का अराउंड होगा काइनेमेटिक्स में से। काइनेमेटिक्स देखो मोशन इन 1 डायमेंशन तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वेक्टर और प्रोजेक्टाइल ही है इसमें से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर देखिए मंडे को फिजिक्स का ही है, आप लोगों ने इधर उधर इतना टाइम वेस्ट कर दिया, प्लीज